जी मुझे आपसे बस ये क्वेश्चन पूछना है कि जिन्होंने कुर्बानी दी राम मंदिर के लिए, जिन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करा, उनके बारे में अगर आप कुछ कह सकते हैं। हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं और मेरी सभी मीडिया कर्मियों से गुजारिश है कि आप सब अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाइए, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवन सुदर्शन अजय बिहारी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम, केंचो एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की तरफ से हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के इस दिन में, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप सभी ने आज थोड़ा सा समय आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकाला, हम तहे दिल से आप सभी का आभार, स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं आज के इस दिन में। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम योर होस्ट MC Dharma and once again I would like to extend a very warm welcome to all our dignitaries as well as all the media persons present out here. You've taken out time from your busy schedule and you've joined us here. We are so happy, so proud and delighted to have all of you here with us today. So let's start this day with a huge round of applause for all of you. Come on, let's have a huge round of applause. संत वाल्मीकि ने कहा है कि राम सिर्फ भारत के नहीं है, राम और रामायण एक परंपरा है जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोती है। और आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं इंडिया इंटरनेशनल रामायण फेस्टिवल के 7वें अध्याय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जो आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के साथ से, आप सभी के प्यार से और भी बेहतर और भी बड़ा हो गया है ये 7वां अध्याय। और इस साल ये जो रामायण मेला है ये एक दिन या एक हफ्ते का नहीं, पूरे साल मनाया जाने वाला एक उत्सव है जो पूरे साल मनाया जाएगा। Ladies and gentlemen, this year we are celebrating the year of connecting the Ramayana to the world. So without any further delay, ladies and gentlemen, let's get started with this press conference। और सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्री कुमार तुहिन, डायरेक्टर जनरल ICCR को। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच हम बुलाते हैं श्री कुमार तुहिन, डायरेक्टर जनरल ICCR को। Honorable Minister of State for External Affairs and Culture, Shrimati Meenakshi Lekhi ji, Ambassadors, High Commissioners, esteemed members of press and dear friends, a very good afternoon to each and every one of you. And as I stand here on behalf of the Indian Council for Cultural Relations, Ministry of External Affairs, to welcome you to the press conference for the 7th edition of India International Ramayana Festival organized by ICCR. Ramayana, as you know, is an epic that transcends time and borders. And it is being a beacon of wisdom, compassion, righteousness, and has been providing ethical and moral guidance to all of us for centuries. Ramayana as a tale not only resonates within the hearts of the people of India, but it has also found its way into the hearts of many nations and many individuals abroad. So today, as we come together to welcome the 7th edition of our Ramayana Festival. Thank you very much, Tuhin and Anju, the entire team of ICCR and a whole lot of our embassies working outside this country who are working for the cause of India, and takes a lot of pride in announcing the 7th edition of India International Ramayana Festival. This festival actually showcases the impact Indian civilization has all along. We are all connected because culturally we are one people. We have the same value system. And that value is the value as depicted in Ramayana. I was just thinking when Mr. Tuhin was speaking, that across the globe, even where Ramayana is not followed as a religious text,
But Ramayana is a text whose values are universal in their approach. Universal because who doesn't want an obedient son? Who doesn't want a self-sacrificing wife? Who doesn't want their children to be brought up with pride, dignity, and self-respect? Who doesn't want brothers to be self-sacrificing and not killing each other for the sake of kingdom? Now, these are the values which are enshrined in Ramayana. और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, इसमें मैं ज़रूर जोड़ना चाहती हूँ कि होई सोई जो राम रचि राखा। भगवान राम तो वनवासी के रूप में भी हमारे प्रिय थे, लेकिन अयोध्या बनी जब राम वापस आए और दिवाली हम सब मना पाए। ऐसे ही राम जो हम सबके रोम में बसते हैं, लेकिन जब उनको अपना मंदिर प्राप्त होगा, उन्होंने अपने सेवक के रूप में प्रधानमंत्री जी को स्वीकारा है, तो शायद कुछ लोगों को तकलीफ जरूर हो रही होगी। Ma'am, you mentioned places in India other than Delhi where these festivals, functions will be held. Any countries outside India? Any of the participating countries? So, they are asking you to perform it outside. So there is two-way traffic. One is that 7 countries from outside India are performing this month itself in India, and this will continue for rest of the year, the whole year-long process. Similarly, we have asked our missions to speak to the local governments outside India where this festival will go. I mean, just an example. Last year, it was 23 or 22 when President visited Netherlands, and we had the performance of Ramayana there, and Kalakshetra group had gone. So we keep doing it, but as of now, those details are yet to come, but definitely in both ways. We will be performing it outside the country, and other countries will be performing within India, so that this is a very deep connection. I mean, I feel our existence is beyond this body. So it's truly a soulful connection where the value systems match each other and they vibrate at the same frequency. नमस्ते मीनाक्षी जी। जी मुझे आपसे बस ये क्वेश्चन पूछना है कि जिन्होंने कुर्बानी दी राम मंदिर के लिए, जिन्होंने मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करा, उनके बारे में अगर आप कुछ कह सकते हैं। मैं देखिए 550 साल तो सामने ही है, लेकिन उससे पूर्व का भी इतिहास है। 700 साल से ऊपर का इतिहास है कि लगातार आक्रमण हुए और लगातार उसको दोबारा बनाया गया, उसको संभाला गया, फिर वो शिथिल अवस्था में पड़ता चला गया। लेकिन कल मैं अयोध्या जी में थी और मेरे साथ एक व्यक्ति, अगर मैं उनका परिचय आपको दूं तो आपको बहुत आनंद आएगा, बाबा हरजीत सिंह जी। सो बाबा हरजीत सिंह जी निहंग हैं और निहंग परिवार से हैं, 8वीं पीढ़ी है बाबा फकीर सिंह जी के। बाबा फकीर सिंह जी ने अब 1857, हम सबको पता है सन 57 की लड़ाई, और हम सब लक्ष्मीबाई जी, तात्या टोपे, ये सब जानते हैं। लेकिन 1858 ठीक उसी साल के अंत में या कुछ महीनों बाद ये लड़ाई राम मंदिर जन्म स्थान पर भी लड़ी गई, और उसमें बाबा फकीर सिंह जी ने कब्जा लिया उस स्थान का, और कब्जा लेकर यज्ञ किया वहाँ पर, और यज्ञ करके वहाँ पर राम चबूतरे की स्थापना, राम जी के जो प्रांगण है वहाँ पर स्थापना हुई, यज्ञ किया, हवन किया, और चारों तरफ दीवारों के ऊपर राम राम लिखा, और ये उनके ऊपर FIR दर्ज हुई, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था, तो थाना कचहरी सिस्टम फर्क था। उससे पूर्व के इतिहास में FIR का सिस्टम नहीं था, तो जो भी इतिहास रहा उसके जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो अन्य भाषाओं में, पर्शियन में, अन्य भाषाओं में मिलते हैं, लेकिन ये तो हमारी भाषा में मिलता है, अवधी, जहाँ पर उनके ऊपर FIR दर्ज हुई।
तो समाज को एक तरफ कुछ लोगों ने तोड़ने बिखेरने का काम किया, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि आक्रांता नहीं होते, देश पर आक्रमण नहीं होते। हमारी सभ्यता संस्कृति के साथ, जो कि बहुत ही पीसफुल लोग हैं, राम भक्त जो है वो पीसफुल लोग हैं, लेकिन जब आक्रमण होगा, आपको कुचलने का प्रयास होगा, आपकी सभ्यता संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास होगा, तो कहीं ना कहीं 550 साल तक बाद भी उसको याद रखना एक रेजिलियंस को भी दिखाता है। कोई फ्रेंच मिशनरी, कोई और लोग जो विदेशों से आए थे, जो वहाँ 7-7 साल 9-9 साल रहे, उनके डिस्क्रिप्शन सब बताते हैं कि वहाँ पर क्षीण अवस्था में मंदिर था और रामनवमी के दिन लोग फिर भी जाते थे और फिर भी परिक्रमा करके आते थे। इसको कहते हैं याददाश्त, और इसको कहते हैं कि 550 साल बाद भी कोर्ट कचहरी में जितने साल लगे, उनके ऊपर गोलियां चली हो, उनके ऊपर बलिदान दिए हो, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने उस राम मंदिर के लिए तपस्या की। और ये उन सब लोगों की तपस्या का ही आज सौभाग्य है जो हम सबको प्राप्त हो रहा है। और मैं यही कहूँगी कि हम सौभाग्यशाली है कि हम अपनी आंखों के आगे अपने पूर्वजों के जो कर्म है उनका फल प्राप्त आंखों के आगे देख पा रहे हैं। तो ये हृदय से मैं उन सबके प्रति नमन करती हूँ और अपना मस्तक झुकाती हूँ कि उन सब की बलिदान कुर्बानियों के बाद आज ये संभव हुआ। और हमारी साझी विरासत है जी, ये तो सभी का है और सभी की साझी विरासत है। उस साझी विरासत पर गर्व करते हुए आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र निर्माण की ओर हम सब कार्यरत हैं। वो तो सभी प्राण प्रतिष्ठा एक मंदिर की जो ट्रस्ट है वो लोग कर रहे हैं, पर वहाँ पर मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग भी इनसे जुड़े हुए हैं वो इसको देख रहे हैं। नेपाल वाले तो बैठे हैं, सीता जी का पीहर है भाई, तो वो तो उन्हीं का है। वहाँ से तो बहुत सारे उपहार भी आए हैं।